ऑलराइट बच्चा, वी स्टार्टेड ट्रिग्नोमेट्री। हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, एंड इन ट्रिग्नोमेट्री वी स्टार्टेड अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल्ड triangles. We studied about the right angle triangles, that what right angle triangles are. And in right angle triangles, we studied few concepts. The first one is Pythagoras theorem, that hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. The second formula we studied was a sine theta is equals to perpendicular divided by hypotenuse. Third formula we studied is cos theta is equals to base divided by hypotenuse. And the fourth formula we studied about is tangent theta is equals to perpendicular divided by base. And the fifth formula we studied is that area of the right angle triangle, it is equals to 1 by 2 into base into height. These are the five formulas which you will use in your IGCSE or O levels to solve any right angle triangle. For example, the first formula is hypotenuse is equals to base plus perpendicular square. You know this already, that in right angle triangle we have the hypotenuse side, we have the base, and we have the perpendicular. Let me make this side. For example, the side opposite to the 90 is hypotenuse. Side opposite to this angle is perpendicular, so the third side is base. For example, if the triangle is in this position, again the triangle is same, the hypotenuse remains the same. But if this angle, if you're talking about this angle, so this side is now your perpendicular and this side is your base. So that's how you can easily memorize the names of the sides. Naming the side is very much important. You can remind these three formulas using some people have curly brown hair through proper brushing. Let's check. S for some, P for people, H for have. Some people have curly brown hair through proper brushing. ठीक है जी. So, and the last formula is all about the area. So I hope that right angle triangle is pretty clear. Is this clear, everybody? Yes or no? Any questions? So you can easily ask. If not, so then I'm proceeding towards the not a right angle triangle. Hoping that there is no question. So moving forward. So the next topic we have is not a right angle triangle. Not a right angled triangles. Not right angle triangles. ठीक है? A triangle which don't have any 90 degrees angle, so that is called as not a right angle triangle. For example, let me make here a triangle. Okay, look at this triangle. For example, the name of this triangle is A, B, and C. Side opposite to angle A is small a SN, and side opposite to angle A is small a, side opposite to angle B is small b, and side opposite to angle C is small c. We know that in triangle we have three sides and we have three angles. So if triangle is not a right angle triangle, so it means that the name of the hypotenuse is already vanished, because the definition of the hypotenuse is that it is facing the side opposite to the 90 degrees. So as we don't have any hypotenuse in this, so we cannot use sine theta, cos theta, and tangent theta. We have two separate rules for that. The first rule is sine rule. First rule is sine rule. Sine rule is composed of two sides and two angles. Okay. So so how we write a sine rule? Okay, Ayana, can you please listen to me? That it is sine A divided by small a is equals to sine B divided by small b is equals to sine C divided by small c. Or we can reverse this if we write the side above or angle in the denominator. Sine A divided by sine A, B divided by sine B, and C divided by sine C. Okay, I'll use this question later, not right now. Okay, so we know this already, Noor, that in sine rule we have only two sides and two angles. We can take these as a combinations. Okay, like for example, let me write this rule three times. Wait a minute. Let me just duplicate it. Okay.
Okay, Noor and Ayana, can you see that the second one and the first one is already the same, but only flipped? Yes or no? Noor, I can take sine A and sine B together. Okay. I can take sine B and sine C together, and I can take sine C and sine A together. I can take only pair. Okay. I cannot solve the three ones. You know this already. We cannot have 2 equals 2 in maths. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay, so this was all about the sine rule and now we moving forward towards the cosine rule. ठीक है, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं कि बेटा ये चीज़ें आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ी होंगी, अभी हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर में पेपर देना है. सो moving forward with the cosine rule. Okay, cosine rule, same it is in the head of not a right angle triangle, but this rule has three sides and one angle, three sides and one angle. For example, let me just draw here a triangle. This is a triangle. The name of the triangle is again A, B, and C. Side opposite to angle A is small a. Side opposite to angle B is small b. And side opposite to angle C is small c. Okay. Now you can see that in cosine rule, as I mentioned here that it has only three sides and one angle. So it means that what we have to do, we can write a cosine rule. The first style of the cosine rule would be that small a square that is equals to b square plus c square minus 2 bc and cos of a. Okay, so now look at this. If for example in this question you can see that already that this is 1 2 3, these three are the sides and this is one angle. That's what I'm talking here. Okay, yes or no? Noor, समझ आइए बेटा, understand? Yes, sir. ठीक है बेटा, कि थ्री साइड्स और ओनली वन एंगल. सो थ्री साइड्स और वन एंगल आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है. ठीक है. Okay, now for example we have to make the cosine rule for small b. So it would be b square. So now a and c is left, so it is a square plus c square minus 2, and we have to write ac but cos of b because we are interested to find out b square. So for example, if I want to write for the 3, Ayana, can you write for the third style of the cosine rule? I want to find out the c square. Right, equals to first, then Sn. So Better turn c off. square is equal to a square plus b square minus 2ab cos Very good. angles. वेरी गुड. सो यहाँ पे देखें, अब याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ. देखें ज़रा, लुक एट द हिंट प्लीज. सी स्क्वायर, if you write c square to the left side of the equals to, so it must be having cos c there. Okay, get it? Then if you wrote a square and b square, so you have to write both of them with ab. Okay, yes or no with the two? That's the hint that how to memorize this. And because memorization is very much important in cosine rule. If you know this, that how to memorize these rules, so then you can easily do it. Right, Ibad? Okay. The third formula in not a right angle triangle is area. Third is area of not a right angled triangle. Area of not a right angle triangle. But area of a not a right angle triangle. So the formula is that area is equals to 1 by 2. Previously in math, we had area of the triangle is equals to 1 by 2 base into height. But in this case, we don't have any base, we don't have any height because the triangle is not a right angle triangle. Okay? It's not a right angle triangle. So what we do, we have product of two sides, product of two sides times sine included. You should have the angle between them. Okay? You should have the angle between them. You can use that formula, sine included. Like what I'm saying here, like for example, AB, let me write here A, B, and C. Just for the sake of example, 5 and for example 7, and this is 35. So if I want to find out the area, so it is 1 by 2. Product of two sides, I'll take 5 and 7.
And see, I have the angle between them, so which is 35. So I will write sine 35. Everything in the calculator and press equals to, you will get the area of any not a right angle triangle. Okay? Yes or no? Like Ayana, we can also say, sir, that we can also do this technique in a right angle triangle. Yes, we can do. But for example, if this is 9 and that is 5, if I want to find out the area here, so area would be 1 by 2, 5 times 9 multiplied by sine 90. The angle between them is sine 90. Yes or no? Yes or no? And all of you can check that easily in your scientific calculator, that sine 90 it is equals to 1. Okay, that sine 90 is equals to 1. That is the reason we don't write sine 90 in right angle triangle. Okay, we just easily eliminate that because we know that in calculator that sine of 90 is 1. Okay, like see, sine, wait a minute, turn on the calculator. Um, Wait a minute. Sine 90, let's see, sine 90 is equals to 1. Get it? Get it, everybody? बेटा समझ आइए? समझ आ गई बेटा आप लोगों को? Yes, sir. ओके, फिर साइन रूल कोसाइन रूल के बाद बेटा पास पेपर में जाने से पहले चैप्टर ख़त्म करना ज़रूरी है, तभी हम पास पेपर कर सकेंगे जब हमें चैप्टर आता होगा, ठीक है? तो ये आप लोगों ने दो दो तीन तीन दफ़ा जो है इन फार्मूलाज को लिखना है ताकि फार्मूलाज आपको याद हो जाएं। फिर यू हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ्स। ठीक है, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, अभी करवा रहा हूँ, वो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आगे जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है और फिर बाद में हमें दोबारा पढ़ना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ तो पहला होता है साइन ग्राफ, पहला होता है बेटा साइन ग्राफ। ठीक है जी, साइन ग्राफ को एक चीज़ याद रखें कि साइन ग्राफ बनेगा 1 और 0 के दरमियान में, और 1 और -1 के दरमियान में। देखें जी इधर, ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ, दिस इज़ फॉर एग्जांपल 1 एंड दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ -1। ठीक है जी, के बाद दिस इज़ 90, दिस इज़ 180, दिस इज़ 270 एंड दिस इज़ 360। अब एक छोटा सा टेबल बनाएंगे आया ना, और वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है बेटा? आया ना? Yes, sir. छोटा सा टेबल बनाना ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, कैलकुलेटर सबके हाथ में होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं भी साइन ग्राफ बनाने लगा हूँ। चलें जी, ज़रा पंच करें कैलकुलेटर में बेटा, साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो क्या आ रहा है बेटा आपके पास? टेल मी, हरी अप। Zero. साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो। ओके जी, तो मैं ज़ीरो यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ कि साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो। ओके, व्हाट इज़ साइन 90? साइन 90 क्या आ रहा है बेटा? चेक। 1. वेरी गुड, सो साइन 90 इज़ 1, सो मैं 1 पे लगा दूंगा क्रॉस एस एन। साइन 180 क्या आ रहा है बेटा? सर मेरे पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप ज़रा देखें, थोड़ा सा एक हिंट चेक करें, देखें साइन ज़ीरो जब ज़ीरो आया तो साइन 180 और 360 भी ज़ीरो ही आएगा, यस और नो? सो दैट वुड बी क्रॉस हॉरिजॉन्टल लाइन पर है ना? ओके, अयाना चेक साइन 270, ये आएगा बेटा -1। क्या आएगा बेटा? -1। अब साइन 360 ऑलरेडी ज़ीरो है, सो दैट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इनको क्या करना है, हमें इनको ज्वाइन करना है और ये होंगे ऐसे ज्वाइन। ठीक है, ये पेंसिल से ज्वाइन करना काफ़ी इजी होता है एज़ कम्पेयर टू आईपैड। तो ये बेटा ये जो ब्लू लाइन है ना, दिस इज व्हाट योर साइन ग्राफ इज। ओके, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस और नो? यस। Yes, sir. Okay, thank you so much. Okay, next we have after sine graph we have cosine graph। साइन के बाद हमारे पास आता है cos ग्राफ, ठीक है? cos ग्राफ, अगेन सेम फार्मूला, सेम सेम हमने करना है, ठीक है? cos ग्राफ के लिए हमें cos को यूज़ करना है, हम साइन को यूज़ नहीं करेंगे, और बस सिर्फ 0 1 लिखना है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -1, यहाँ पे लिख देंगे 0।
ये हो गया cos 0, ये हो गया cos 90, ये हो गया cos 180, ये हो गया cos 270, ये हो गया cos 360। ओके जी, चलें जी, कैलकुलेटर उठा लें बेटा, मुझे बताएं cos 0 क्या आ रहा है बेटा? व्हाट इज cos 0? 1. वेरी गुड, ओके, cos 0 1 आ रहा है तो हमें यहाँ पे पहला क्रॉस लगाना है। ओके, व्हाट इज cos 90? cos 90 क्या आ रहा है? 0. वेरी गुड, इट इज़ 0। ओके जी, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। व्हाट इज cos 180? -1. वेरी गुड, ओके जी, हम लोग यहाँ पे भी लगा देंगे 180 के नीचे -1। ओके, फिर अब लिखें cos 270। 0. गुड, क्योंकि 90 और 270 दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं, दैट इज़ द रीज़न। ओके, फिर आप लिखें जी cos 360। यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ मैं। 1. 360 इज व्हाट? 1. 1, तो ये आ गया जी cos 360 इज +1। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमें, लेकिन आपको कॉस ग्राफ की जो है शक्ल याद होनी चाहिए कि ज्वाइनिंग कैसे करनी है, ठीक है। अगर आप ज्वाइनिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तो आप लोगों को जो है वो डिफ़िकल्टी होगी, समझ आई आपको? तो आपने ज्वाइनिंग ऐसे करनी है, देखें, इसके लिए कर्व बनाना है, ये नहीं कि रूलर लगा लो किधर, ठीक है, रूलर रूलर नहीं लगाना, ठीक है। तो आपने लगाना है ऐसे, तो कॉस ग्राफ को आपने लेकर आना है, तो आपने ऐसे किया, ये आ गए आप लोग इधर, ये आ गए आप लोग इधर, ऐसे, ठीक है बेटा। इज दिस क्लियर? आपने वेव बनानी है, वेव, ये नहीं कि रूलर से स्ट्रेट लाइन खींच दो, ठीक है। बात स्टूडेंट्स ये करते हैं, क्रॉस लगा लेते हैं और देन दे डू दिस थिंग, नहीं, गलत है। अच्छा, ये लाइनें नहीं लगानी आप लोगों ने, इज दिस क्लियर? दैट्स द रॉन्ग। इजी, इजी आया ना? Yes, sir. एक बात मुझे बताएं जरा, आप कैलकुलेटर पे cos 45 पंच करें, देखें क्या आता है। 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0.7. 0 पॉइंट व्हाट? 7. ओके, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 0 और 90 के दरमियान में होगा 45। अगर मैं इस 45 को ग्राफ के साथ हिट करूं तो क्या आया ना, आपको लगता है यहाँ पे 0.7 होगा? Yes, sir. तो ये ही आपकी मैथ्स की कमाल है कि वो आपको एग्जैक्ट अच्छे आंसर्स बताता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ग्राफ Yes. ऐसी हवा में नहीं बनते, उनकी कोई पीछे कोई लॉजिक होती है, उसके 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 साथ बनते हैं, ठीक है। आखिरी रहता है बेटा हमारा टेंजेंट ग्राफ, और टेंजेंट ग्राफ सबसे इजी है, लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है टेंजेंट ग्राफ, ठीक है। अच्छा जी, टेंजेंट ग्राफ के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास ये है मेरा बच्चा, कि हमें पता है कि टेंजेंट जो है ये यहाँ पे तो जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर 1 2 नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। 1 2 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि टेंजेंट की वैल्यूज बहुत बड़ी आती हैं, ज़रा आप चेक कर लें ज़रा, आप लोग ज़रा टेंजेंट 10 लिखेंगे कि क्या आता है? टेंजेंट 10 0 1 के बीच में नहीं होता ये। 0.17. ओके जी, तो अब सबसे पहले मुझे बताएं कि टेंजेंट 0 क्या आता है? 0 आता है? Yes, sir. ओके जी, तो दिस पॉइंट इज माय 0। ओके, ज़रा टेंजेंट 90 ज़रा मैथ्स में पंच करें, आप देखें मैथ एरर आएगा, आएगा कि नहीं? Yes, sir. यस, बिकॉज 90 इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के ऊपर ग्रेडियंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो वो होता है हमारे पास मैथ एरर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 90 और 270 के ऊपर हम लोग डॉटेड लाइनें लगाते हैं इसमें, ठीक है। बिकॉज वी कैन नॉट हैव टेंजेंट 90 एंड वी कैन नॉट हैव टेंजेंट 270, ठीक है जी। क्लियर है आयाना? आयाना, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, टेंजेंट 90 और 270 पे डॉटेड लाइनें लगा दी, बिकॉज वी कैन नॉट टच दीज पॉइंट्स, या सो आई नो दैट इन टेंजेंट आई कैन गो फ्रॉम 0 टू दिस प्लेस, बट आई कैन नॉट टच दैट लाइन, yes or no? I have to go parallel with that line, yes or no? Yes or no? Noor, can you please check tangent 91? Tangent 91, it is negative or positive? Negative answer, check. Negative, sir. See, negative. 57.6. Okay, so we know that tangent 180 is 0. Yes or no? Yes Yes, or sir. no?
and negative will start from this point. Yes or no? And it will go like this. Agree? Because tangent 270 is also math error. Agree? Can you please punch tangent 271? Because 270 is math error. I can write again for you math error. Can you please punch tangent 271? Minus 57.2. See, again minus 57. Okay, so it will have to go like this and it have to touch 360 because tangent 360 is also 0. The way tangent 0, the way tangent 180 is 0, tangent 360 is 0. Agree? Okay, that's how. ये कैसे हो रहा है? जरा देखें जरा इसके पीछे. Can you see the circle? बेटा circle सबको नजर आ रहा है? I'm gonna make a plus sign in it. Okay? Okay, I know that gradient at this point is 0. Yes or no? Because it's a horizontal line. Agree? Yes or no? Hasan? Yes, sir. Okay. Tangent 180 is also 0 because this is still horizontal line. Yes or no? Yes or no? As this is 180, but this is also 180. That is the reason tangent 360 is also 0. Agree? Agree? Yes, sir. So in we get this kind of concept here. Like for example, in trigonometric functions, like in trigonometric functions, what we have. बेटा ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा ये लिखना है ज़रूर, ये पेपर में कम से कम आपको 20 to 40 मार्क्स दिखाएगा. Trigonometric functions. We know that in graph, Ibad, we know that in graph there are 4 quadrants. Yes or no? This is first quadrant. This is second quadrant, right, Noor? This is third quadrant. And this is fourth quadrant. ठीक है जी? Okay. In first quadrants, all are positive. All are positive. ठीक है? और by all I mean sine, cos, tangent. सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 to 90 तक. 0 to 90 तक. यस और नो तमाम पॉजिटिव होंगे. जरा चेक करें बेटा कैलकुलेटर पे, प्लीज प्लीज चेक. कॉस 35 चेक करें पहले, क्या आ रहा है? पॉजिटिव आंसर आ रहा है. फिर साइन 35 चेक करें. फिर टेंजेंट 35 चेक करें. तीनों के आंसर्स बताएं मुझे. हरियप हरियप हरियप, एक बच्चा बता दे जल्दी. कॉस 35 इज व्हाट? 0.8. 0.8 पॉजिटिव. ओके. साइन 35 इज व्हाट? 0.5. ओके. एंड टेंजेंट 35 इज? 0.7. ओके, तो इसका मतलब है सी ऑल आर पॉजिटिव. यस और नो? कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव हैं, बट इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 90 से बड़ा एंगल, मतलब 91 आ सकता है, तो हम 110 लिखते हैं. ठीक है, तो ज़रा चेक करें जी. कॉस 110 चेक करें, देखें आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है. Minus 0.3. -0.3. Three. ओके. व्हाट अबाउट साइन 110? 0.9. सी पॉजिटिव आंसर आया. ओके. टेंजेंट 110 का करो, नेगेटिव आएगा. चेक. Minus 2.7. -2.7. ठीक है, तो देखें ये आपके पास आंसर आ गया, तो सी ये आ गया जी. ओनली साइन इज पॉजिटिव. ओनली साइन इज पॉजिटिव, कि सिर्फ साइन ही पॉजिटिव है. ठीक है. ओके. अब आते हैं जी थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर. तो यहाँ पे ऑल साइन, अब यहाँ पे आएगा आपके पास कॉस. क्या आएगा? कॉस. कि यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है. क्या होता है बेटा? कॉस पॉजिटिव होता है. आयान आपको पता है ना कि यहाँ से यहाँ तक होता है 180, और ये 180 से बड़े एंगल होंगे लेकिन 270 से छोटे होंगे. यस और नो? थर्ड क्वाड्रेंट में बात आ गई है ना. Yes, sir. ठीक है.
ओके, सो चलें जी, ज़रा चेक करें, मुझे एक बंदा बता दे जी। थोड़ा सा हम लोग करते हैं कि थोड़ा सा 180 से बड़ा एंगल लेते हैं, तो हम लिखते हैं कॉस 200। बेटा कॉस 200 पंच करें, क्या आ रहा है? कॉस 200 पंच करें, क्या आ रहा है बेटा हरिया? -0.9 सी -0.9। ओके, साइन 200 पंच करें। -0.3 ओके, ज़रा टेंजेंट 200 प्लस पंच करें, देखिए ये आंसर पॉजिटिव आएगा आपके पास, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट इज पॉजिटिव। व्हाट? 0.3 0.3 पॉजिटिव। सी यहाँ पे मैंने कॉस पॉजिटिव लिख दिया गलती से, सो लेट मी जस्ट रिमूव दैट, तो ये यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट इज पॉजिटिव, टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव। सो सी टेंजेंट इज पॉजिटिव ओनली इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा? आइडिया, कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल्स आएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 270 है और यहाँ पे 360 है, इसके दरमियान के एंगल, तो हम लोग ले लेते हैं 300, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉस 300। ज़रा आयाना करो तो बेटा, साइन 300, नूर टेंजेंट 300। जी, कॉस 300 इज व्हाट? 0.5 0.5। देखिए पॉजिटिव आया है। ओके, साइन 300 गारंटेड नेगेटिव आएगा। -0.8 -0.8। और टेंजेंट 300? -1.7 -1.7। तो यहाँ पे देख लें बेटा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, तो ओनली कॉस इज पॉजिटिव, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉस आपका जो है वो पॉजिटिव है। तो अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फ्रॉम 0 to 90, देखिए 360 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 भी होगा, यहाँ पे 90 है, तो 0 से 90 तक जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, और कॉस भी पॉजिटिव होगा, और टेंजेंट भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है ऑल। तो इसको मैं याद कराने के लिए बच्चों को ये कहता होता हूँ कि आप एक छोटा सा प्लस पेपर में साइड पे बनाएंगे, कि यहाँ पे आप लिखेंगे ऑल, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन, यहाँ पे आप लिखेंगे tan, और यहाँ पे आप लिखेंगे cos, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि here in first quadrant all are positive, in the second quadrant sine is positive, in the third quadrant only tangent is positive, and in the fourth quadrant only cos is positive. If cos is positive means sine and tangent is negative. If tangent is positive means sine and cos is positive, negative. And if sine is positive means cos and tangent is negative. Is this clear everybody? Asan, Ayana, Ibad, Kabir, Noor. बेटा आपका क्या नाम है बेटा? ये यूनिटेक्स आपने ज्वाइन किया? Hassan, sir. व्हाट? Hassan, Hassan. Hassan. So let me just write your name. Okay. Get it everybody? Yes or no? Yes, sir. Asan समझ आइए बेटा? जी सर। जी। Ayana, Ibad, जी कबीर, नूर, फातिमा। बेटा देखें, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 जो है वो मैंने आज आपके सामने किया है। आज आपके सामने ज़रा एक चीज़ मैं आप लोगों को खाली दिखा लेता हूँ, कि ये मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने मैंने क्लासेस को अपलोड करना शुरू किया है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं योर चैनल। एक मिनट, ये देखें जी, ये जो नई ये वाला जो थंबनेल मैंने इस्तेमाल किया है ना, ये जो नए वाला थंबनेल है, ये थंबनेल जो है ये आप लोगों की क्लासेस हैं, ठीक है। ये वाला जो थंबनेल है, इससे जो पुराना ये ब्लू वाला थंबनेल है ना, ये पुराना सेशन था। लेकिन वही बात है, आप ये वीडियोस भी देख सकते हो, सेम लेक्चर्स ही हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लें, ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, नज़र आ रहा है बेटा आपको? 1 डे अगो। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 अपलोड करूंगा, ठीक है। आपको मैंने प्लेलिस्ट भेजी है, आप प्लेलिस्ट में जाके मैं आपके लिए यहाँ पे सेव भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 13 वीडियोस मैंने डाल दिए हैं समर क्लासेस के नाम पे। सी यहाँ पे मैंने ये 13 चैप्टर्स जो हैं, ये मैंने इनकी वीडियोस जो हैं इनकी डाली हैं, ठीक है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता डाउनलोड करके एक एक वीडियो को अपलोड करके थंबनेल वगैरह सेटिंग करके मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, समझ sir. आइए बेटा सबको? मैं अभी करता हूँ ये रिकॉर्डिंग स्टॉप, क्योंकि आज मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया है। आप लोगों ने करना ये है कि सारा काम आपने अपनी कॉपी में लिखना है, और इसके ऊपर को अपने क्वेश्चंस अपने रखने हैं, ताकि हम लोग मंडे को जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पास पेपर करें, तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ये आपके दिमाग में बैठा हो, तभी हम लोग पास पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे इस पेपर, ठीक है। यस और नो? Yes, sir.
मैं स्टॉप शेयर करके मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेजता हूँ, आप लोग रिकॉर्डिंग से इसको देख लें, नोट्स में भिजवा रहा हूँ ग्रुप में, यू कैन चेक ऑन दैट, ओके।